Hi everyone, this is Vishruti and I am Deepika. We are here to discuss about interview processes and CAT exam preparation. Vishruti has scored 90 percentile in SNAP and many great scores in other exams like CAT and MAT. Right now, Vishruti is studying in TAPMI, but she has given her interview in many good colleges like IIM Sambalpur, Great Lakes. तो हम ये सारे experiences उसके preparation के interview के कैसे गए सब कुछ discuss करेंगे so that if any of you are preparing now or starting now, आपको एक आइडिया मिले, गाइडेंस मिले कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो इन जस्ट लास्ट 4 months. एट द सेम टाइम इफ यू टारगेटिंग तापमी, इट इज वन ऑफ योर टारगेट कॉलेजेस, तो आपको उसके बारे में, कॉलेज के बारे में क्या चल रहा है, कैसे प्लेसमेंट्स हैं, कैसे करिकुलम है, स्टडी स्ट्रक्चर है, को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो हाय विश्रुति, वेलकम. एंड यस, प्लीज टेल आवर स्टूडेंट्स समथिंग अबाउट यू. Hi, ma'am. Hello, everyone. Currently, I'm enrolled at TAPMI. I'm enrolled in MBA HRM course. I'm a fresher. I come from a non-mathematical background. I have done BA Sociology from Chandigarh. And in my 11th and 12th, I had commerce. So it's a mix of everything. When I was in my 11th and 12th, we had business study. That was my favorite subject. And in that, we had a topic about HRM. So वहीं से I was inclined towards HRM and I decided that I want to pursue my career in HR. So in my third year of my college, I started to look for coaching options and I was enrolled in an online platform for my coaching because that was the time of COVID and I was more comfortable in that. So in my first attempt, I scored around 69 percentile, because of which I couldn't clear a lot of colleges. But in that attempt, I prepared very diligently. I studied around 12 hours, including classes and everything. But because of my non-mathematical background, I couldn't get through. But in my second attempt, I scored around 84 percentile. In that attempt, I had a mentor and I didn't go for any coaching. That mentor was actually my teacher. So he knew me well and he guided me through my QA and LRDI things because I was weak in that. VARC was fine for me since the beginning. In my first attempt, I scored around 89 percentile in VARC, and in my second attempt, because I focused more on QA and LRDI, I scored less. It was around 77 percentile. But in my other QA and LRDI, I scored good. So I was able to convert some colleges, some good colleges. Okay. That I is how see. it was. You have told us that your VRC was good, right? But a lot of students don't have good VRC from the start. They need to work harder. So आपने ऐसा क्या किया? Maybe you had a reading habit, good reading habit already, या कुछ ऐसा होगा ऐसा you were already comfortable with VRC. So can you suggest few things to students जो especially start करते हैं जब उनका maths अच्छा होता है but VRC बहुत weak होता है, तो उनके लिए आप क्या suggestion देंगे? मैं एक रीडर हूँ. I was into reading since childhood, so I loved reading. And when I used to attend your classes, there were some tricks that were told by you. I used them, to select two options and then two best options out of the four, and then figure out what is the right option. I use that a lot. And I think because VARC is a mix of reading comprehension and other verbal skills, so you can choose what you are good at. I used to attempt one comprehension, then I used to attempt all the verbal questions, and then again, if I had time, I used to attempt second comprehension Hmm. because comprehension took more time Right. and verbal ability was easier for me. So I had this strategy. And all the while I was preparing for CAT, I used to read newspaper. Although I don't like to read newspaper, but I still used to read the first page of the newspaper, only just the first page. And apart from that, I love reading novels. So I used to read my all-day novels, fiction novels that I like. And apart from that, you can also uh, go by preparing these comprehensions. I used to solve reading comprehensions a lot.
So because they are like a story only, so it's fiction only, so they can generate more interest rather than reading a newspaper. So reading, and you can work on your vocabulary. एग्जैक्टली तो मतलब इफ आई हैव टू आस्क यू हाउ मेनी पैसेजेस, अगर हम एग्जाम के 3 या 4 मंथ्स पहले की बात करें, व्हेन यू गिव योर एग्जाम, कैट स्नैप एवरीथिंग, तो आप अप्रोक्सीमेटली डेली बेसिस पे रीडिंग को कितने पैसेजेस कर लेते थे, या एक हफ्ते में कितने करते थे प्रैक्टिस? VARC mein I was good, so I didn't used to practice it a lot. But uh, during my 1 week, I used to in a 1 week I used to uh, do like 5 reading comprehensions, and I used to solve more of verbal ability questions गॉट इट। because that took less time, लाइक आपका and I was अच्छा good था at it. बीआरसी, राइट? तो यू लाइक सॉर्ट आउट 5 to 6 पैसेजेस है, बाकी तो वोबेलेबिलिटी कोई, दैट मींस समवन हाँ इज नॉट वेरी गुड, एवरेज है या बिलो एवरेज, तो उसको आई थिंक डेली 2 पैसेजेस तो मिनिमम करने ही चाहिए, इजंट इट? तो मतलब हम्म, वीक में 10 से 12 हो गए, एंड बाकी उसके अलावा वोबेलेबिलिटी भी थोड़ा, इजंट इट? हाँ, हाँ you ये should find what you are good at and what interests you more. राइट राइट। एट द सेम टाइम, लाइक एक और चीज मुझे आई वांट टू जस्ट ऐड हियर, कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वेरी लेंथी एंड बोरिंग, कह रही स्टोरी होती तो हम पढ़ लेते, ये क्या एकेडमिक और क्या टेक्निकल लैंग्वेज है, आई थिंक। बट देन जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी लर्न सम न्यू नॉलेज एंड एवरीथिंग, वो भी वही चीज है, उसको बस यू जस्ट हैव टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट एवरी पैसेज। सो द मोर यू रीड, वैसे भी हम मोर जितना पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सो आई थिंक कैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इंसान अपनी जनरल नॉलेज और बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकता है जस्ट बाय रीडिंग, आपको रीड ही करना है और कुछ नहीं करना है, isn't it? So I think reading plays a Yes. big role in VRC rather than anything else. Of course आपको टेक्निक्स है ये सब पता होने चाहिए, पर रीडिंग स्ट्रांग नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, isn't it? अब रीडिंग तो Comprehension maybe there are different topics. Like I didn't used to like science topics, so I used to ignore them. Comprehension में से भी जैसे 3 comprehensions है, so you can select what you are interested in. So if it's related to culture or arts, I used to select those comprehensions, and then I used to attempt that. So you can always make your own ways. करेक्ट। सो हाउ इज तापमी, लाइक अभी आप 1 साल हो गया, यूर इन सेकेंड ईयर, राइट? सो हाउ वाज द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, कितने हेक्टिक थे, कैसा कोर्स करिकुलम है, ओवरऑल क्लास एनवायरनमेंट कैसा होता है? कैन यू जस्ट इलैबोरेट ऑन योर एक्सपीरियंस इन तापमी? Yeah, sure. So, first year is pretty hectic. When you come here, it takes time to adjust as well. So, वो different environment और वो सब की वजह से भी hectic लगता है. But classes और curriculum काफी rigorous होता है, तो hectic रहता है. But till the time our SIP starts, the placements for SIP starts, it is fine, not that hectic, and then it gets like that. In the second year, it's not hectic at all. In fourth term, you will find it hectic because 2 महीने का break होता है, then you come again, and then then you adjust in that environment again. So थोड़ा सा time लगता है, और fourth थोड़ा hectic रहता है क्योंकि उसके बाद से placement start होती है, final placements, तो इसलिए बाद में chill रहता है. Fifth और sixth term तो काफी chill रहेगा, कम classes होगी. और overall college is good. It's in Manipal. Manipal is a great place. All of nature and everything. Now rainy season is going on here, so it's nice. Apart from that, college has a lot of clubs and committees, so you'll be able to find what you're interested in easily. So I'm also in a committee. It's called BRATS. It's Bikers, Runners, and Trackers. So I was interested in it, so I joined it. So there are a lot of activities, and in-class activities also. We have like class presentations, which is a part of our curriculum. We have marks for that. We have class presentations, group presentations, then we have class participation as well. That is based on the interaction you have with the teacher. So that is for that also we have marks. Then we have midterm exams, and then we have interim exams. In first year only we have midterm exams. In second year we don't have midterm exams. We only have interim exams. So it's good. Overall, it's a good college. Oh, great, great. So, see, ठीक है, now see a lot of students, like especially अभी हमने नया ग्रुप बनाया है, a lot of students ask questions and doubts, तो मुझे एक common question मिलता है, especially
जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दे ऑलवेज आस्क कि अभी मैम 4 मंथ्स बाकी है, 5 मंथ्स बाकी है, कैसे स्टार्ट करें, दैट वे। तो आपने डेफिनेटली लाइक मे बी 4 मंथ्स से ज्यादा प्रिपरेशन की है, राइट? यू आर माई स्टूडेंट। Yes. व्हेन वी प्रिपेयर फॉर लॉन्ग हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखने लगते हैं, जिस चीज हमने 2 महीना वेस्ट किया, अरे ये तो 1 महीने में हो सकता था, कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स Yes. डेफिनेटली होते हैं। सो एनी एवरेज स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग नाउ से लाइक अप्रोक्सीमेटली 100 days बिफोर, आप उन्हें कौन से टॉपिक्स पे पहले ध्यान देने बोलो, क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या करो या क्या नहीं करो, क्योंकि अभी वो सब कुछ तो नहीं कर सकते, राइट, सारे टॉपिक्स। तो आप क्या क्या टॉपिक्स और किस तरह की प्रिपरेशन बोलोगे लास्ट 100 days में, सो दैट दे कैन रिवाइज, टेक मॉक्स एंड एक डिसेंट स्कोर ला पाए? Okay. First of all, I will say find a mentor. It may be a teacher or a student, senior student who has gone through the process. So, after you find a mentor, sit with the person and find the areas you are good at. So, in my second attempt, I didn't go through the whole curriculum, the whole syllabus of CAT and other OMETs as well. I only focused on the areas I was good at. In first attempt, I focused on everything and I attempted a lot of questions in my first attempt, and because of that, it all got bad. But in my second attempt, I made sure whatever I am attempting, I am confident of it. So, after finding the mentor, you should find the areas you're good at and only focus on that. Like in quants, I was only good at arithmetic. So, I only prepared for that. And if you're starting before 4 months, so you should only prepare for those specific areas you like. So, I only prepared for arithmetic. VARC, I was good at it. So, I prepared both reading comprehension, verbal ability. LRDI, sorry, I only prepared for LR more, less of DI because I am not good at analytics or quants kind of subjects. Okay. So that, and I feel that if you're starting 4 months before, you should not go through a lot of classes. Rather than you should do more of self study by the guidance of your mentor. You should every now and then check with the person if you are going in the right direction, and everything will fall in. But do not go for a lot of guidance from different people. Do Okay. what suits you Yes. and what is comfortable and convenient for you. Correct, right. Focusing on just strengths, even doing the basic minimum is also sometimes enough. Hmm. अगर सही तरीके से, सही डायरेक्शन से किया है, इवन आई रेकमेंड समवन हु हैज जस्ट 4 मंथ्स राइट नाउ, उनको सिर्फ आई थिंक वर्बल में पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वो 70% है, मे बी चारों पैसेज नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, बट स्टिल अगर Hmm. प्रैक्टिस अच्छी At होगी, least two. हाँ, टू भी कर पाए प्रैक्टिस, तो समरी क्वेश्चन साथ में अपने आप हो जाएंगे। समरी में आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, जब 4 में से बेटर समरी पता चलेगी, तो वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक हो रहा है, वो कॉम्प्रिहेंशन ही चेक हो रहा है इनडायरेक्टली, राइट? तो मुझे लगता है अगर Yes. आरसी पे ज्यादा ध्यान दे लिए तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इन अ वे वीए के वो भी थोड़े बहुत हो जाएंगे प्रैक्टिस अभी, क्योंकि अभी मैक्सिमम तो यही चल रहा है, राइट? बाकी में चेंजेस भी Hmm. आते हैं, कभी ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन आता है, कभी 3 आते हैं, तो आई फील आरसी इज कंसिस्टेंट। 2 पैसेज भी आप ठीक से करके आए, 1-2 आपने वीए के कर लिए, तो एक डिसेंट स्कोर आ सकता है अगर सब सही है तो, ऑफ सिमिलरली मैथ्स में जैसे अरिथमेटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, प्लस अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एक और टॉपिक तो आई थिंक अलजेब्रा है, ज्योमेट्री। इसके अलावा Hmm. अभी फिलहाल जो स्टार्ट करें उसे और कुछ करने की, ऑफ कोर्स देयर आर मोर टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, पर आई डोंट थिंक अभी जो स्टार्ट कर रहा है वो सब ये सब कर सकता है, राइट? सिमिलरली डीएलआर में आई थिंक कोई भी टेबल या पाई चार्ट, डेटा तो उतना ही क्रंच करना, चाहे टेबल ग्राफ आ जाए, लाइन ग्राफ या जो भी, लाइक नो वो तो सेम है, हैव टू Yes. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और बाकी सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है, कोई भी एक एलआर में जो आपको एक एरिया आई थिंक इजी लग रहा है, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, कि 3-4 में से एक टाइप तो डेफिनेटली आना है। सो हम्म। दैट, कैट में अगर आप 2 सेट भी बनाओगे उसमें तो आई थिंक वो इनफ है। यस, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप 2 पैसेजेस और वीए के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो भी इनफ रहेगा। करेक्ट। सो आई थिंक यस यस, आई थिंक 90 परसेंटाइल भी लाने के लिए किसी को, आई थिंक जस्ट 50% मार्क्स लाने, इवन स्लाइटली लेस देन 50% मार्क्स, मतलब तो हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी आप इजीली एक डिसेंट, मतलब मार्क्स ऑफ टॉप 50 टॉप 60 कॉलेजेस में कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट पहुंच सकता है, अगर सिर्फ 10-10 क्वेश्चन भी हर अच्छा।
जिनमें अटेम्प्ट किए तो इट्स मोर देन एनफ, करेक्ट। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, लाइक टेल मी इन टू पार्ट्स, पहले तो आपने इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपरेशन की फर्स्ट, एंड सेकेंडली जब आप कॉलेजेस में गए इंटरव्यू देने के लिए तो आपको किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, फ्रॉम योर प्रोफाइल या जनरल करंट अफेयर्स, या जो एमबीए रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चन नो जो उनका प्रोग्राम है, लाइक किस तरह के क्वेश्चंस कैसे कहाँ पे ज्यादा थे? जनरली लोग मॉक इंटरव्यूज देते हैं, बट मैंने कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया. आई एम नर्वस when it comes to interviews and these things, but मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया. मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया. मैंने बेसिक क्वेश्चंस ढूंढे पहले, कि जो जनरली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे वाई एमबीए, why HR, because I was interested in HR and I only applied to colleges having HR. हम्म। So why HR? Why this course? Because my background is different. Why you are switching? So all of this. So I prepared for them. And whenever it comes to interview, I feel that you cannot predict what all is going to come and on the table. So you cannot prepare for everything. हम्म। So presence of mind should be there. हम्म। सो बेसिक क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बट बाकी इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो ऑन द स्पॉट रहता है. सो वहां पे इवन इफ यू आर नर्वस, बट डोंट ट्राई टू put it forward, like don't show your nervousness to the interviewer. Just try to be confident and just try to think and then answer. So इंटरव्यू के लिए यही स्ट्रैटेजी थी मेरी. Then I gave interview for a lot of colleges. Snap I gave for SEM HRD. Then Bangalore I was waitlisted. IIMS, baby IIMS 3, baby IIMS I gave interview for Sambalpur, Sirmaur and Vishakhapatnam. Uh, I was I was waitlisted for Sambalpur and Sirmaur. And Great Lakes, I converted Gurgaon campus, but I didn't go for it. Nirma University, Ahmedabad, I also converted that, but I didn't go for that. I went for Thapni Okay. because it was a good college. Yeah. It is a tier two college, so I went for this one. ओके सो बट कितने आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू, मतलब ज्यादा आपके प्रोफाइल बेस्ड थे या करंट अफेयर्स थे या एमबीए रिलेटेड कुछ थे, लाइक क्वेश्चंस इफ यू रिमेम्बर आपको कौन से ज्यादा थे क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर्स तो नहीं थे मोस्टली. ओके। प्रोफाइल से रिलेटेड थे, बिकॉज आप जो अपने स्टार्टिंग के टेल मी अबाउट योर सेल्फ में जो चीजें बताते हो, जनरली क्वेश्चंस उसके अराउंड थे. तो उसके अराउंड ही ज्यादा क्वेश्चन थे. एमबीए से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो काइंड ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस थे. uh, उसके Okay. अलावा करंट अफेयर्स नहीं थे. Okay, so they basically are checking the overall personality की एमबी के लिए राइट कैंडिडेट है कि नहीं है, और बाकी जो प्रोफाइल है उसमें वो सब सही है कि नहीं है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लो, बट बाकी ऐसी कोई। और एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्योंकि मेरा एचआर कोर्स था. Okay, okay, great. Okay, so apart from your score, is there anything which helped you in your admission through your profile also? क्या आपने कोई जॉब करी थी पहले या इंटर्नशिप करी थी which helped you with your admission? No, ma'am, I'm a fresher, but because I come from an arts background, so I think that helped me. Hmm. And because there is diversity in a lot of colleges these days regarding academic profile, so I had arts. That's why I think I converted the three. Sorry, I got a call from three baby IIMs based on my profile only. ओके ओके। डू यू हैव एनी सजेशन द स्टूडेंट्स जो अब जैसे फॉर एग्जांपल कैट एग्जाम दे देते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेसेस और उस सब में बहुत कुछ लिखना होता है अपने बारे में, उस टाइम पे कुछ याद ही नहीं आता है राइट स्टूडेंट्स को कि अरे पहले सोचना चाहिए था। सो उसमें आपने कैसे किया, डू यू हैव एनी सजेशंस ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें और अच्छी एप्लीकेशन बना पाए? सेम मेरे साथ भी हुआ था. मुझे भी बहुत कुछ याद नहीं आ रहा था. काफी कम चीजें थी लिखने के लिए. बट मेरा जब कैट का ये एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए थे, तो आई इंटर्न एट अ प्लेस फॉर 4 months. ओके। So I was able to write that in my application. So you can always use the time after your exams, because वहाँ पे काफी गैप मिलता है around 2 to 4 months का, जहाँ पे आप ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे होते हो, इंटरव्यू हो रहे होते हैं, जीडी हो रहे होते हैं, बट वो टाइम आपका वैसे फ्री होता है, तो आप उस टाइम पे चिल भी कर सकते हो, बट आप अपनी प्रोफाइल भी थोड़ी स्ट्रांग बना सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो या और कुछ कोर्स कर सकते हो.
राइट। ऐसा। प्रोफाइल के लिए इजीली हर किसी को 1 मंथ तो मिलता है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हुए अपने कैट एंड मैट स्नैप, ये सब नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाते हैं। उसके यस। तैयारी कब तक आपकी पूरी होगी? इन केस कोई एग्जाम बाद में भी है, इट्स अ टेस्ट जो जनवरी में होता है दैट, बट स्टिल यू प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, पहले से कर ही रहे होते हो मेहनत। तो आई थिंक उसके बाद स्टूडेंट्स का तो 1 मंथ होता है फॉर देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि एक पेपर में एप्लीकेशन में 10-15 क्वेश्चन है तो ये तो एक दिन में भर जाएगा। आपने कितना थॉट दिया उस पे वो दिखता है, लेकिन वो सेंटेंस तो हर किसी ने लिख रखे हैं, यस। मतलब कितना आपने इसमें टाइम दिया है, थॉट दिया है, हर क्वेश्चन का आंसर सोचा है, वो क्लियर दिखता है, डिफरेंस दिखते हैं। सो आई थिंक हर स्टूडेंट को थोड़ा सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए 1 मंथ पहले से। और एक सवाल की जब आपने कम से कम 10 बार आंसर सोच लिया हो, 10 से 15 बार, तभी उस आंसर को वहां लिखो। ऐसा नहीं हाँ। कि कम्स फर्स्ट वो आपने लिख दिया, क्योंकि तभी वो परफेक्ट आंसर आएगा, राइट। और प्रोफाइल यस ट्रू। एप्लीकेशन जितनी अच्छी होगी, आपका एडमिशन कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है, बिकॉज इवन बिफोर योर इंटरव्यू एडमिशन कमेटी ने कहीं ना कहीं आपको एक जज कर लिया होता है कि अच्छा ऐसी एप्लीकेशन फिलअप की है ये, तो ये पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी होगी, ऐसा होगा। और इंटरव्यू में फिर यू जस्ट हैव टू मैच दैट्स इट, है ना। इंटरव्यू बस मैच करनी हो पर्सनैलिटी, और बस एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन का आंसर ठीक ठाक करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे या आपको पता होगा। ट्रू। आधे से ज्यादा क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक से आप जितना भी प्रोफाइल से चीजें जो मैचिंग है वो आप ठीक से आंसर कर पा रहे हो। सो आई थिंक इट्स गुड टू गो देन। इंटरव्यू में कोई दूसरी प्रॉब्लम तो होती नहीं, इट डजंट हैव टू गो एक्सीलेंट, इट जस्ट हैज टू बी गुड। यस। There's generally one thing that makes you stand out from the crowd. For me, it was my book. I have written an ebook, so that I included in my profile applications and everything. So that made me stand out. और interview में questions भी उसके around पूछे गए थे, तो कुछ एक ऐसा stand out करने वाला factor सबके उसमें होता ही है। तो I guess ऑल दो बाकी सब चीजें जेनरिक होगी, बट एक पॉइंट होगा जो आपको स्टैंड आउट करेगा। Oh nice, so what is the name of your ebook? It is the firm decision. The what, sorry? The firm decision. Firm decision, okay. Is it related to MBA? Firm No, decision. no, no. It's fiction. Only 22 pages. अच्छा It's अच्छा। available on Amazon Kindle. अच्छा ठीक है, ग्रेट। तो ये भी मैं इसका लिंक भेज देना, आई जस्ट पोस्ट इट इन माय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई श्योर मैम। लाइक टू और रीड ये मैंने इट। कैट के प्रिपरेशन के टाइम ही स्टार्ट किया था। वन मंथ में और मैंने 22 वन मंथ में पेजेस ही है, लगाया। 22 पेजेस ही है स्टूडेंट्स। मैं तो यही बोलूंगी बाकी स्टूडेंट्स को रीडिंग प्रैक्टिस करनी है तो व्हाई नॉट, लेट्स रीड दिस। तो मैं तो पक्का पढ़ूंगी, मुझे लिंक सेंड कर देना व्हाट्सएप में भी, है ना। सो श्योर मैम। या सो आई थिंक काफी आसान आइडिया लग गया है हमें कि कैसे स्टार्ट करना है एंड एवरीथिंग, लाइक स्टूडेंट्स को भी काफी क्लैरिटी मिल गई है। सो डू यू हैव एनी लाइक शॉर्ट सजेशन या लास्ट सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स, एनी एवरेज स्टूडेंट हु इज जस्ट स्टार्टिंग और जिसके पास सिर्फ 100 डेज हैं अभी, वो फ्रेश बेसिक से एंड तक क्या करे जिससे उसका एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए? अगर इन शॉर्ट आपको 2-3 लाइंस में कुछ सजेशन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गो फॉर अ मेंटोर। इधर आपका 4 मंथ का बचा है प्रिपरेशन या 1 ईयर का, इरिस्पेक्टिव, गो फॉर अ मेंटोर। और एंड डोंट गो फॉर अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। करेक्ट। और प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट। राइट, वेरी गुड। हाँ, आई थिंक प्रिपेयर वेल, चाहे 4 महीने चाहे 1 साल हो, यू हैव टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं होने वाला है। अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट लेट्स से 1 ईयर बिफोर, बट इतना कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क नहीं दे पाते, तो उनका हाँ, रिजल्ट शायद अच्छा ना आए। एट द सेम टाइम कोई लोग, बीइंग हाँ कंसिस्टेंट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली 3 to 4 मंथ्स पहले भी स्टार्ट करते हैं, बट डेली 4 to 5 आवर्स कंसिस्टेंटली देते हैं, तो इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क ही मैटर करती है इन सब एग्जाम्स में, देन एनीथिंग एल्स, है ना। हाउ अर्ली या हाउ लेट यू स्टार्ट। आई थिंक अभी भी कोई स्टार्ट कर, लेट है डेफिनेटली, आई वुड नॉट से लेट नहीं है, बट ठीक है, पॉसिबिलिटी है इफ द पर्सन इज हार्ड वर्किंग, आई मीन इजंट Yes, इट, ma'am. तो हो सकता And if you're not aiming for IIMs or the top colleges only, so there are good tier 2 colleges as well. You can always go for them, है। like I did. यस आई थिंक यस, बेसिकली इन सब कॉलेज से क्या होता है, टीयर 1 टीयर 2 व्हेन भी से आपका जो फर्स्ट प्लेसमेंट है वो होपफुली शायद काफी अच्छा हो, बट Hmm. आफ्टर दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम लेवल। आप अपनी फर्स्ट जॉब में कैसा Yes. परफॉर्म करते हो, क्या सीखते हो एंड एवरीथिंग, वहां से कोई भी किसी को भी सरपास कर सकता है। लाइक ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि जो आई एम अहमदाबाद में गया फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा बाकी सब जो कॉलेज में जहाँ गया सबसे आगे रहने वाला लाइफ टाइम। वो फिर कब वो फर्स्ट जॉब में मैक्सिमम हो जाएगा, बट देन दैट्स इट, है ना। उसके बाद ऐसा नहीं कि आई एम अहमदाबाद वाले हमेशा आई एम बैंगलोर के से आगे रहेंगे, या वाइस वर्सा समथिंग लाइक दैट। ऐसा आई थिंक रैंकिंग ऑफ कॉलेज मैटर्स ओनली
maybe till you're in the college, or maybe your first internship या college के through, या first जो भी आपको job experience मिल रहा है, that's it. Yes, I agree with that. So thank you Vishruti, thank you for joining us today, and hopefully काफी useful होगा students के लिए. I will just ask students, if you have any questions regarding TAPMI or any questions regarding preparation, आप please comments में पूछिए, and we will try our best to answer you in the best way possible. Thank you everyone for attending this. Thank you, ma'am. Thank you for your guidance.